بلتستان انتخابات میں اہم پیش رفت، پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد گلگت 2 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی۔ پی پی کے جمیل احمد کو برتری، غیر حتمی نتائج میں تحریک انصاف کے فتح اللہ 2 ووٹ سے فاتح قرار پائے تھے۔ مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر رہی۔ شہر شہر گاؤں گاؤں مہنگائی نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ اشیاء ضروریات سمیت ہر چیز کی قیمت میں اضافہ، مزدوروں اور سفید پوش طبقے کا جینا دوبر۔ خواتین کی عصمت دری اور بلیک میلنگ، بہاول نگر میں گن پوائنٹ پر زیادتی اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والا باپ بیٹا گرفتار، درجنوں کا بے اعتراض ویڈیو برآمد۔ سردی آتے ہی سوئی گیس نیاب، چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے، خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات، ہوٹل پکوان اور تندور کا کاروبار بھی متاثر، مختلف شہروں میں لوگوں کا احتجاج۔ اور جنوبی وزیرستان میں کھیلوں کی سرگرمیاں عروج پر، کیڈٹ کالج اسپین میں کئی نیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں سنسنی خیز مقابلے، میزبان وزیرستان ازمری نے میدان مار لیا، ٹرافی اور انعام بھی نام کیا۔ السلام علیکم۔ شہر شہر گاؤں گاؤں کے سفر کے ساتھ میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، آغاز کریں گے گلگت بلتستان انتخابات سے۔ حلقہ LA2 گلگت شہر میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی، پیپلز پارٹی نے برتری کا دعویٰ کر دیا، غیر حتمی نتائج میں تحریک انصاف کے فتح اللہ 2 ووٹ سے فاتح قرار پائے تھے۔ پیپلز پارٹی کے جمیل احمد نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا دے دیا تھا۔ آج دوبارہ گنتی پر پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار جمیل احمد کے 142 ووٹ سے برتری کا دعویٰ کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق حلقہ LA2 گلگت شہر میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے برتری کا دعویٰ کر دیا ہے، غیر حتمی نتائج میں تحریک انصاف کے فتح اللہ 2 ووٹ سے فاتح قرار پائے تھے۔ پیپلز پارٹی کے جمیل احمد نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا دے دیا تھا۔ آج دوبارہ گنتی پر پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار جمیل احمد کی 142 ووٹ سے برتری کا دعویٰ کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات سے متعلق بڑی خبر آپ کو دیں، حلقہ LA2 گلگت شہر میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی، پیپلز پارٹی نے برتری کا دعویٰ کر دیا، غیر حتمی نتائج میں تحریک انصاف کے فتح اللہ 2 ووٹ سے فاتح قرار پائے تھے۔ پیپلز پارٹی کے جمیل احمد نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا دے دیا تھا۔ آج دوبارہ گنتی پر پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار جمیل احمد کے 142 ووٹ سے برتری کا دعویٰ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ نیو نیوز شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاکر، کہیے گا پیپلز پارٹی نے سیٹ اپنے نام کر لی ری کاؤنٹنگ میں؟ بڑا ڈرامائی تبدیلی ہوئی ہے نتائج میں، کیونکہ پہلے دن جس دن اس پولنگ ہوئی تھی اس دن جمیل احمد ویلوالڈی کو ان کو فاتح قرار دیا گیا۔ دوسرے دن جو ہے وہ صبح تحریک انصاف کے فتح اللہ کو 2 ووٹوں سے غیر حتمی نتائج میں کامیاب قرار دیا گیا، جس کے بعد پیپل پارٹی کے بہت بڑے تعداد میں پروٹیسٹ ہوا، شہر کو بلاک کر دیا گیا اور DC آفس کے باہر دھرنا دیا گیا، جہاں بلاول نے بھی آ کر خطاب کیا۔ اس کے بعد بلاول نے بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی، جس پر انہوں نے کہا کہ کسی طور پر بھی اس مبینہ دھاندلی کو ہم نہیں مانیں گے۔ جس کے بعد آج جب دوبارہ گنتی کی گئی ہے تو ابھی تک ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ پہلی گنتی میں پیپلز پارٹی کے جمیل احمد کو تقریباً 150 ووٹ کی لیڈ ہے۔ اس سے بعد یہ اطلاعات بھی مل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی گئی ہے کہ اس کو ایک بار پھر گنا جائے، لیکن اب تک کی جو بڑی خبر ہے اس حلقے پر بڑی نظریں تھی، کیونکہ یہ حلقہ جس میں سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان، تحریک انصاف کے صوبائی جنرل سیکرٹری فتح اللہ اور سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی جمیل احمد میں مقابلہ تھا، اور اس حلقے پر سب کی نظریں تھیں GB الیکشن میں، اور اب اس میں ڈرامائی تبدیلی یہ ہے کہ جمیل احمد کو فاتح قرار دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگر دوبارہ گنتی نہیں ہوتی تو اس وقت کے رزلٹ کے مطابق جمیل احمد یہ نشست جیت گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاکر عباسی، اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔
बच्चियों पर तशद्दुद के वाक़यात खत्म होने में नहीं आ रहे। सरगोदा के नवाही कस्बा में 8 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्ची की लाश किन्नू के बाग से बरामद कर ली गई। तालिबा की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दी गई है। बच्ची से ज्यादती और कत्ल पर अहले इलाका ने एहतजाज किया है। उन्होंने दरिंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाने और कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। वुरसा ने इलाके के एक शख्स मुबशर पर बच्ची को अगवा, ज्यादती और कत्ल का इल्जाम आयद किया है। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज फातिमा ने मीडिया की निशानदेही पर एक्शन ले लिया। नवीद असलम को कोऑर्डिनेशन टू विमेन प्रोटेक्शन का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया है। नवीद असलम ने कुछ रोज़ कबल खातून नायब पोस्ट मास्टर को डाक में ताखीर पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस पर साहिवाल में मुकदमा भी दर्ज है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं और मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ नजीब अहमद से। नजीब, बताइएगा, इस तकर्री पर शदीद तनकीद हुई, फैसला वापस ले लिया गया? जी बिल्कुल जी, ये पीटीआई के मकामी रहनुमा है नवीद असलम, जिसको डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से कोऑर्डिनेटर टू वुमेन प्रोटेक्शन बना दिया गया था। नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर को जारी किया गया और आज 17 नवंबर को ये नोटिफिकेशन मीडिया पर तनकीद होने की वजह से और इस नोटिफिकेशन को गलत कहने की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। नवीद असलम ने कुछ माह पहले सीनियर पोस्ट मास्टर सूफिया कासम को ऑन ड्यूटी दफ्तर में घुसकर थप्पड़ मारा था, जिससे खातून का कान का पर्दा भी मुतासर हुआ था और अब ये मुकदमा इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत है और मुलजिम नवीद असलम अबूरी जमानत पर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब अहमद। बहावलनगर में खवातीन की बरहना वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान से असलह के जोर पर ज्यादती की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। सिटी पुलिस ने छापा मारकर गिरोह के सरगना बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जा से 100 के करीब खवातीन की काबिल एतराज वीडियो बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नैब हुकाम सक्खर का मजिस्ट्रेट के साथ नवाबशाह में महकमा खुराक के गोदामों पर छापा। नैब हुकाम ने महकमा फूड के दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। छापा स्टॉक में खुर्द-बुर्द की इत्तला पर मारा गया। गोदाम में चेकिंग का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक नवाबशाह महकमा फूड बंस गोदाम समेत जिला के 7 सरकारी गोदामों में स्टॉक की जांच पड़ताल की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में 21 नवंबर से 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में लॉकडाउन के दौरान स्कूल्स मुकम्मल बंद रखने का फैसला किया गया है। तमाम कारोबारी मराकज़, दफातर भी बंद रहेंगे। सिर्फ लाजमी खिदमात का कारोबार SOPs के तहत जारी रखा जाएगा। मजहबी इज्तिमात और नमाज जनाजा मुकम्मल SOPs के तहत होंगे। आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सख्त स्क्रीनिंग की जाएगी। और अब आपको बताएं कि जिला लिया में कोरोना के वार जारी। 11 स्कूलों में 23 तलबा और 7 असातिज़ा कोरोना से मुतासिर हैं। 2 मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मजीद इस हवाले से जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ नासिर हयात से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ज़िला लिया में कोरोना की दूसरी लहर ने जो है काफ़ी सारे लोगों को मुतासर किया है। 114 से ज़ायद जो है एक्टिव केसेस इस वक्त लिया में मौजूद हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर लिया इस पर जा मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि कोरोना की क्या सूरत हाल है। जी, जैसा कि आपने अभी बताया है, हमारे ज़िला लिया में इस वक्त 114 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। इनमें से 2 DHQ हॉस्पिटल में हैं। दोनों पेशेंट स्टेबल हैं। 112 हमारे जो केसेस हैं वो पॉजिटिव हैं और अपने घरों में करंतना किए गए हैं। उसकी वजह यही थी कि फौरी तौर पर जैसे ही हमें पता लगता था, हम फौरी तौर पर उस मरीज़ को ना सिर्फ क्वारंटाइन करते रहे हैं बल्कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके मजीद भी कोई केस था तो उनको भी क्वारंटाइन करते रहे हैं, जिससे इस बीमारी का फैलाव रुका है। उनकी आवाम से अपील है कि वो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें ताकि इस वबा को शिकस्त दी जा सके। जी, न्यूज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गया। बच्चे को कुत्ते के काटने पर खबर नशर करने पर कमिश्नर हैदराबाद ने नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दिया। टंडूवाला यार के नवाही गांव टंडू सोमरू बेल कॉलोनी के रिहायशी के 10 साला बेटा कुत्ते के काटने से शदीद जख्मी हो गया, जिसको करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां वैक्सीन न होने के बायस जाँ बहक हो गया। वुरसा ने एहतजाज करते हुए कहा, कुत्ते के काटने की वैक्सीन न होने की वजह से 10 साला काहू बेल ने तड़प तड़प कर जान दे दी। सिविल अस्पताल टंडूवाला यार लाया गया, वहां भी वैक्सीन न मिली।
बर वक्त वैक्सीन न मिलने की वजह से बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। और अब आपको बताएं कि बन्नू में तेल और मसाला मंडी के ताजरों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब बन्नू के सामने मुजाहिरीन ने नारेबाजी की। टीएमए ऑफिस बन्नू के सामने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया गया। ताजरों ने लैंड इंस्पेक्टर के गैर कानूनी छापों और जुर्मानों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़क टायर जलाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मीरपुर खास में पार्किंग के बढ़ते मसाइल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। गैर कानूनी पार्किंग और रिक्शा स्टैंड से ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे मीरपुर खास से नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल महमूद से। जी बिलाल, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर खास शहर में जगह जगह पर वैसे तो गैरकानूनी पार्किंग कायम कर दी गई है, लेकिन ये मुकाम जो मेन मार्केट जो है यहाँ पर जो है वो गैरकानूनी पार्किंग और दूसरा जो है वो चिंची स्टैंड जो है वो कायम कर दिया गया है, जहाँ पर रक्शे आते हैं, सवारियों को जो है बिठाते हैं और उसके बाद जब रक्षा भरता है उसके बाद जो है वो यहाँ से रक्शे रवाना होते हैं। इस वक्त भी जो है वो एक लंबी कतार गाड़ियों की यहाँ पर लगी हुई है, पार्किंग जो है वो की है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना जो है वो यहाँ पर मामूल बन चुका है। मीरपुर खास के शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये गैरकानूनी पार्किंग को खत्म किया जाए। यहाँ पर जो चिंची स्टैंड गैरकानूनी तौर पर कायम हो चुका है उसको खत्म करने में इंतजामिया अपना किरदार अदा करे, क्योंकि शहरी जो है वो घंटों घंटों यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इस अजाब से निकालने में इंतजामिया जो है वो अपना किरदार अदा करे। जी, और वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। और शहर शहर गांव गांव में बढ़ती महंगाई ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। अशिया खुरनोश समेत हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। मजदूर और सफ़ेद पोश तबके का जीना दो बर हो गया है। मुख्तलिफ शहरों से महंगाई की सूरत हाल जानते हैं। सिंध के इलाके समारोह से राशिद हनीफ कायम खानी हमारे साथ होंगे, जबकि पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान से जौहर अमीन, बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी से रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद होंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे समारोह से, हमारे नुमाइंदे राशिद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी राशिद, कहिएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर और क्या कहते हैं शहरी? की तरह समारोह में भी हुकूमत का छोड़ा गया ज़कूटा जिन मैं क्या करूं किसको खाऊं अब हुकूमत से भी बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोज़मर्रा अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बात कर रही हैं। दिहाड़ीदार तबका खासा परेशान दिखाई दे रहा है। आटा, चीनी, सब्जियां महंगो दामों फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहरियों का यही कहना है कि महंगाई का जिनको काबू किया जाए ताकि वो दो वक्त की सुकून की रोटी खा सकें। जी ठीक है राशिद हनीफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सिब्बी का रुख करेंगे, रमेश कुमार से मजीद तफसीलात जानेंगे। रमेश, आप कहिएगा सिब्बी में महंगाई को लेकर क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सिब्बी के शहरियों ने लुंडा बाज़ार का रुख कर लिया है, जहां पर वो सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए अपने लिए और बच्चों के लिए गर्म कपड़े ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। जबकि इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है और उसकी वजह से लंडा बाज़ार में खरीदो फरोख्त बच्चों के लिए करने के लिए आए हैं कपड़े, और महंगाई की वजह से महंगाई इतनी है कि जहाँ पर हमने 4 या 5 सूट लेने हैं बच्चों के लिए, तो महंगाई की वजह से हमने 1 या 2, 3 ऐसे लेने पड़ रहे हैं। गर्म कपड़ों की कीमतें वो भी आसमानों से बातें करें, जिसकी वजह से मजबूरन जो हमें 4 सूट लेने थे वो 2 या 3 लेकर हम अपना गुजारा करने के लिए वो कर रहे हैं। जी ठीक है रमेश कुमार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डेरा गाजी खान का रुख करेंगे, वहाँ से जौहर अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जौहर अमीन, आप कहिएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी इस मौके के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की तरफ से भट्ठा खर्च को बंद करने के बाद बिल्डिंग मटीरियल अगर ईंटों और टाइलों की बात की जाए तो इसके रेट जो है आसमान को जा पहुँचे और ये कारोबार जो है इंतहाई मुतासिर हो चुका हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमें 30 साल हो गए काम करते हुए, 30 साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि भट्ठे बंद करने से तकरीबन जो 8,000 रुपये लेते थे आप 13,000 14,000 रुपये हो गई है। बड़ा मजदूर तबका और मिस्त्री मजदूर बैठ कर चले जाते हैं, उनके चूल्हे ठंडे हो गए। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि वो भट्ठा खर्च को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए चलाएं, ना कि बंद करें। बंद होने से अगर बात की जाए तो ये कारोबार बिल्कुल बैठ चुका है। इस हवाले से जो लोग हैं वो कहते मायूस नज़र आते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डेरा गाजी खान। और इसी तरह से सिब्बी समारोह से हमारे नुमाइंदगान ने आगाह किया महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। यहाँ एक ब्रेक, मगर इससे पहले न्यूज़ अपडेट्स।
और अब आपको बताएं कि पन्नू आकल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मियां लालू अंडहर की इमारत इंतजामिया की आदम तवज्जो के बाद 10 बरस से खस्ता हाली का शिकार है। छतों का प्लस्तर गिरने से तलबा ने खौफ के बायस स्कूल आना छोड़ दिया। मजीद इस हवाले से जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद है पन्नू आकल शहर की अलमुस्तफा कॉलोनी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मियां लालू इंडर में। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस इस स्कूल की जो इमारत है वो खस्ता हाली का शिकार हो गई है और अब तो ये स्कूल की इमारत भूत बंगले के मनाजिर पेश कर रही है। यहाँ पर हमारे साथ इस स्कूल का उस्ताद भी मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, 8-10 साल से तकरीबन यही कंडीशन चल रही है और तकरीबन 126 बच्चे थे, अब जाके 36 बच्चे हैं, जिसमें से 18-20 आते हैं। लेकिन जब ये गिरना शुरू हो जाती है तो बच्चे आना छोड़ देते हैं। वालिदैन आते हैं, उनका मुतालबा ये है कि आप जल्द से जल्द स्कूल बनवाएं। इन्होंने वज़ीर तालीम सिंध और बाब अख्तर से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द पन्नू आकल शहर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मियां लालू इंडर की मरम्मत कराई जाए ताकि यहाँ पर तलबा तालीम हासिल कर सकें। जी, नौशहरा विरका में जा बजा गंदगी के ढेर लगे हैं। शहरों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरखास्तें भी दी मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मियां उमर महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा विरका के एक मेन रोड पर। सीधे नौशहरा विरका की बात की जाए, सीधे नौशहरा विरका के जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं जिससे शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त इस तरह एक शहरी मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। हमने जी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को काफ़ी दफ़ा जो है वो एप्लीकेशन भी दी हैं और ये काफ़ी अच्छे से कूड़ा ये जो हमारे पीछे नज़र आ रहा है वो बड़ा हुआ है और थोड़े दिनों की बात है कि आए दिन कोई ना कोई इसको जो आग लगा देता है जिससे स्मोक, बहुत ज़्यादा स्मोक पैदा होती है जिससे हमारे बच्चों के गले ख़राब होते हैं और हमारा मोहल्ला जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। आला हुकाम नोटिस लें और शहर की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाए। गोजरा में गुडाखाना चौक का सीवरेज नाला शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। खस्ता हाल सीवरेज नाले से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है जबकि ट्रैफिक के हादसा भी बढ़ने लगे हैं। मजीद इस हवाले से जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ आबिद सिंधु से। जी आबिद, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा के वस्त में कायम गवर्नमेंट मिडल स्कूल के मेन गेट के सामने, जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की गफलत के बाद मेन गेट पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कचरे के ढेरों से तफन उठ रहा है, बीमारियाँ वबाई अमराज फैल रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, हमारे जो शहर का मेन स्कूल है, मिडिल स्कूल है, यहाँ पर अरसा से इसके गेट पे जो है ना कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी ये मकामी इंतज़ामिया को आगाह कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुतालबा है कि जो स्कूल का मेन गेट है इसके सामने से जो गंदगी और कचरे के ढेर हैं इनको फौरी तौर पर उठवाया जाए। जी, लोधरा में पानी के नाले से 1 मन से ज़्यादा वजनी कछुआ बरामद हुआ है। रेस्क्यू और वाइल्ड लाइफ ने बाहिफाजत दरियाए सतलुज में छोड़ दिया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लोधरा के नवाही इलाके मखदूम आली में पानी के नाले में बड़ा कछुआ आकर फंस गया, जिस पर रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करने के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ को इतला दी। रेस्क्यू टीम ने कछुए को दरियाए सतलुज के पानी में छोड़ दिया। रेस्क्यू के मुताबिक कछुए का वजन 1 मन से भी ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। 4 रोज़ भी ज़मीनी राब्ते बहाल ना हो सके। वादी लीपा में सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोग ज़िंदगियां ख़तरे में डालकर पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। महकमा शाहरात ने भारी मशीनरी की रेशियां के मकाम पर बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया है। वादी लीपा महकमा शाहरात का कहना है सड़क जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हरुणाबाद में कॉटन फैक्ट्रियों से उड़ने वाले गर्दो गुबार और धुएं से करीबी देहातों के लोग दमा, सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ चौधरी तारिक जावी से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त स्मोग और जो आलूदगी छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनको सील किया जाए। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुरनाबाद के करीबी गांव में। यहाँ गांव के बिल्कुल पास ही कॉटन फैक्ट्रियां हैं जिनकी रुई से कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, दमे और दूसरी बीमारी में मुब्तला हैं। मेरे पास इस वक्त गाँव के कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जी, हमारे गाँव की शर्की जानब 2 कॉटन फैक्ट्रियाँ हैं जो गिरदो गुबार छोड़ रही हैं और जिस वजह से हमारे गाँव के लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, दमा और सांस की बीमारी में मुब्तला रहे हैं। और हमारी आला काम से अपील है कि इनको बंद करवाया जाए या इनका मुनासिब इंतजाम करवाया जाए। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां इमरान खान से वो अपील करते हैं कि इन फैक्ट्रियों को फिलफौरी बंद किया जाए या इनके ऊपर बंदोबस्त किया जाए। जी,
आज़ाद कश्मीर में मौसम सरमा का आगाज होते ही खुश्क मेवाजात की डिमांड में इजाफा हो गया, लेकिन दूसरी जानिब कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करेंगे सरदार सारिस निसार। आज़ाद कश्मीर में मौसम ने अंगड़ाई ली तो खुश्क मेवाजात की डिमांड में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है सर्दियों के लिए ये अनमोल तोहफा है, लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब की जो पहुंच से अब ड्राई फ्रूट भी जो है बहुत दूर चला गया है। ड्राई फ्रूट जो ही सर्दियां करीब आती हैं तो ड्राई फ्रूट्स की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करना शुरू कर देती हैं। ड्राई फ्रूट ना सिर्फ महंगा हो गया है बल्कि आप बादाम आपको आम मार्केट में नहीं मिलेगा। वो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ बादाम लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि रूटीन में बादाम हर जगह से मिलता था। समझ लें कि ब्लॉक हो गया है, कहीं समझ नहीं बादाम क्यों गायब हो गया है। अवाम का कहना है सब्जियों फलों के बाद अब खुश्क मेवाजात भी ख्वाब होने लगे हैं। वजीर आजम इमरान खान और आज़ाद कश्मीर महंगाई का नोटिस लें और अवाम को रिलीफ फ्राहम करें। सरदार साइरस निसार, कोटली, आज़ाद कश्मीर। और वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ की मुसलसल निशानदेही पर राजनपुर की अली कॉलोनी की आवाम का सड़क का दरीना मसला हल हो गया, जिस पर इलाका मकीन काफ़ी खुश हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी इम्तियाज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर की अली कॉलोनी पर मौजूद हूँ, जहाँ की रोड जो थी ये काफ़ी अरसा टूट फूट का शिकार रही और न्यूज़ की इसकी आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद MPA सरदार अवैस दृशक ने इस रोड को बनवाने के लिए एक्शन लिया। भी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जाने के। पहले यहाँ ऐसा माहौल होता था कि जब बारिशें होती थी ना तो हम यहाँ से गुजर भी नहीं सकते थे। फिर माशाल्लाह न्यूज़ ने हमारा मसला था जो उजागर किया, फिर सरदार साहब ने माशाल्लाह देखा, उसके बाद अब रोड बन रही है। क्या कहना है, अब रोड बन चुकी है और MPA के नोटिस लेने के बाद मुतलका इदारों ने इस रोड को मुकम्मल किया और अहले इलाका ने न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया। सरगोदा यूनिवर्सिटी का आलमी एजाज मुहक्किकीन की आलमी दर्जाबंदी में सरगोदा यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर शामिल हो गए हैं। डायरेक्टर ऑरिक डॉक्टर फारूक अनवर, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर अफजल, डॉक्टर नवाज ताहिर बकर कैंपस केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मुहक्किकीन की आलमी दर्जाबंदी में शामिल हुए हैं। मुहक्किकीन की दर्जाबंदी अमरीकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया ने जारी की है, जबकि सरगोदा यूनिवर्सिटी के 4 मुहक्किकीन दुनिया के 2% बेहतरीन मुहक्किकीन में शामिल हैं। इस जमन में सरगोदा यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को भी पीछे छोड़ दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 जबकि सरगोदा यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर्स मुहक्किकीन की आलमी दर्जाबंदी में शामिल हुए हैं। हारूनाबाद के नौजवान मोहम्मद आजम ने कमाल कर दिखाया। 110 सीसी मोटरसाइकिल के इंजन को इस्तेमाल करते हुए एक ट्रैक्टर की शक्ल में अमली तौर पर बनाकर देखने वालों को हैरत में डाल दिया। मजीद जानते हैं चौधरी तारिक जावेद से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं हारूनाबाद में और हारूनाबाद के उस कारीगर के पास मौजूद हैं जिसने अपनी मदद आप के तहत 110 सीसी मोटरसाइकिल से 240 सीसी मैसी ट्रैक्टर बनाया है, जो छोटे काश्तकारों के लिए कारआमद होगा। इस वक्त हम उसके पास मौजूद हैं। जी, मुझे शौक़ था ट्रैक्टर बनाने का और मैंने आज इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर दिया है और मज़ीद छोटे काश्तकार हैं जो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। शहर में 15-20 मन ये वज़न आसानी से ले जा सकता है। अगर हुकूमत वक्त फ़िल फौरी मेरी कुछ मदद करे तो मैं इससे ज़्यादा ट्रैक्टर बना सकता हूँ और जो छोटे काश्तकारों को किरायत कीमत पे मिल सकते हैं। जी, इंसान हिम्मत और कुदरत साथ दे तो हालात बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों का अच्छे मशवरे और ख़ुद की थोड़ी सी मेहनत ने गरीब और बेरोज़गार लंडी कोतल के सईद शाह को खुद कफील बना दिया। कैमरामैन जिब्रान चिनवारी के साथ सुदेर अहमद की ये रिपोर्ट देखते हैं। ख़वातीन जो कि देहात में होती है उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो घबराना नहीं, सिर्फ वजीर आजम के मशवरे पर अमल करें। और किसी को तो वजीर आजम का मशवरा समझ में आया या नहीं, जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल गांव खोगा खेल शिनवारी के सईद शाह को समझ में आ गया। घर में ही कमरे को पोल्ट्री फार्म बना डाला। सईद शाह का कारोबार चल निकला तो लगा औरों को भी मशवरे देने। इंशाल्लाह ये काम ज़बरदस्त काम है। जिसके पास भी जगह हो, थोड़ा भी जगह हो, वो रख ले
सईद शाह का कहना है कि वो बीमार है और उसके इलाज मुआवजे पर रोजाना 3000 रुपए खर्च आता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके घर का खर्च अच्छे से चल जाता है। हुकूमत से इमदाद न मिलने का शिकवा भी कर दिया। कैमरामैन जिब्रान शिनवारी के साथ सुधीर अहमद आफरीदी, न्यो, लंडी कोतल। पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों के बाद वजीरिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप खुशियां बखेर कर इख्तिताम पजीर हो गया। मजीद बताएंगे मोहम्मद अयूब। जनूबी वजीरिस्तान कैडेट कॉलेज पिनकई में पहली IGFC साउथ KP नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप मेजबान टीम वजीरिस्तान अजमरी ने मैदान मार दिया, ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इवेंट में मुल्क भर से नौजवानों ने हिस्सा लिया। सिविल और अस्करी अफसरान के अलावा रुकन सूबाई असम्बली हाफिज असामुद्दीन समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। शायकीन ने मुकाबलों के इनाकात को सराहा और खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। सारी चीज़ें तालीम में, एजुकेशन में मुमद और मुआविन साबित होती है। ये इलाका क्लियर है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, तालीम चाहते हैं। मेहमान ख़ुसूसी सेक्टर कमांडर साउथ KP ने कहा, मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, ऐसी सरगर्मियों से छुपे टैलेंट को उभारने का मौका मिलता है। मेहमान ख़ुसूसी ने फातेह टीम को ट्रॉफी पेश की, जबकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले में इनामात भी तकसीम किए गए। मेहसराय कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब, न्यू न्यूज़। और थरपारकर हमेशा से ही मजहबी हमांगी की मिसाल साबित हुआ है। थर में 62% हिंदू आबादी है। हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली पर अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मिट्टी के मुरलीधर मंदिर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तोहफे और राशन तकसीम किया गया, जिसमें आटा, चीनी, चावल, ऑयल, कपड़े और गर्म कंबल और खवातीन की चूड़ियाँ भी शामिल हैं। और दीन का मामला दिल का मामला होता है। गोजरा में सर्दियों की खास सौगात मकई की छल्ली पक कर तैयार हो गई। ऐसे तो मकई की भुनी हुई छल्ली खाने में खुश जायका होती है, लेकिन नमक में भूनकर खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। आबिद सिंधु की रिपोर्ट देखते हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही गोजरा में मकई की फसल तैयार हो जाती है। मकई की भुनी हुई छल्ली बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। छल्ली सर सर्दियों की एक सगात आ जिहड़ी पंजाब में पाई जाती है, बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत वास्ते भी अच्छी है, खाण वास्ते भी टेस्ट इसदा बड़ा अच्छा है। मीठी मीठी भुनी हुई छली खाने में खुश जायका और इंतहाई मजेदार होती है, लेकिन नमक भून कर तैयार की गई छली खाने का अपना ही मजा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मकई ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसका इस्तेमाल वजन कम करने, निज़ाम इज़हाम और दिल की बीमारियों से भी महफूज रखता है। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद सिंधु, न्यू न्यूज़, गोजरा। हैदराबाद में इज्तिमाई शादी की तकरीब में 14 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। 9 ब्याता जोड़ों को हस्ब ज़रूरत जहेज़ भी दिया गया। इज्तिमाई शादियों का मकसद गरीब माँ बाप की बच्चियों के बर वक्त हाथ पीले करना था। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट। माशरे की फरसूदा रसूमात की वजह से अमूमन गरीब माँ बाप अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक समाजी तंजीम की जानिब से हैदराबाद के बाग़े मुस्तफ़ा में इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई, जिसमें 14 जोड़ों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। शादी की तकरीब में दूल्हा और दुल्हन के अजीज़ों और दोस्तों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। उन लोगों को अहमियत दी जाती है जो बिल्कुल पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हों, जहेज़ का सामान या फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर होने की वजह से अपनी बच्चियों के रिश्ते तय नहीं कर सकते हैं। 9 ब्याता जोड़ों को हस्बे ज़रूरत जहेज़ भी दिया गया। पंडाल में जब दूल्हा पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। बाद में मेहमानों की उम्दा और लजीज खानों से तवाज़े की गई। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। इसके साथ ही शहर शहर गांव गांव का सफर अख्ताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू।